Hello guys, I Aishi from LU Update. Now I'm here with my next video. In this video, we will do our most important and common questions for the BCom entrance examinations. Okay, top 30 MCQs. Okay, so if you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notifications. And if you wanted the PDF of this MCQ, please go and visit our websites, and if you have any queries, please join our WhatsApp group. Links are given in the descriptions. Okay, so let's start the video. First question is, wealth of the nation is written by, basically wealth of the nation was written by the Adam Smith. Okay, Adam Smith is also called as a father of economics, and he given the wealth definition of economics, and he wrote the wealth of nation. Okay, Adam Smith wrote the wealth of nation. Okay, so answer will be C, Adam Smith. Then there is a next question. Next question is, a pure theory of domestic value is written by, pure theory of domestic value is written by the Marshall. And Marshall given the welfare definition of economics. Okay, so answer will be D, Marshall. Okay, written the book Pure Theory of Domestic Value. Okay, then there is a third question. According to the Marshall economics, basically Marshall ने आपको economics की theory दी हुई, wealth fair definition was given by the Marshall. According to him, economics is a normative science. Okay, so answer will be B, normative science. Okay, then there is a next question. Utility is, basically utility क्या है? Utility एक psychological एक phenomena है आपका. ये basically आपका relative form में होता है, not in absolute form. And थर्ड, यूटिलिटी मे बी यूजफुल और हार्मफुल. बेसिकली आपको अगर किसी भी कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपके लिए हार्मफुल इस यूजफुल है या हार्मफुल है, उससे यूटिलिटी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता. ओके, आपको अगर उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी. ओके, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. ओके, यूटिलिटी आपका एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी है, एक रिलेटिव फॉर्म में भी होता है, और मे बी यूजफुल हो या फिर वो हार्मफुल हो. ओके, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. Then there is a next question is, Cardian approach of a utility analysis is given by, basically cardinal आपके utility के दो approaches होते हैं, एक ordinal approach होता है, एक cardinal approach होता है. Okay, cardinal approach of utility is analysis is given by the Alfred Marshall. Okay, so answer will be A, Alfred Marshall. Then there is a next question. Which of the following is a formula of MU? Basically MU क्या होता है आपका? मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट, मतलब एक आपकी यूनिट में क्या होना, एडिशनल यूनिट ऐड ऑन हो जाना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड ऑन होना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू दी आपका टोटल, जितना भी टोटल यूटिलिटी हो उसमें से आप क्या करेंगे, एन इज अ नंबर ऑफ यूटिलिटी, कितनी नंबर ऑफ यूटिलिटी है, एंड माइनस आप उसमें से क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी n माइनस वन. ओके, सो mu is equals to tun minus tun minus 1. Okay, so answer will be A. Then there is a next question is, which is the first rule of H Goisen. First rule क्या था? H the first rule of the HS Goisen is a law of diminishing margin utility. Okay, so answer will be A, law of diminishing margin utility. ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में क्या होता है कि मीन्स इसका मतलब होता है कि व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम एज मच मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, देन द यूटिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम क्या होती है, वो कम होने लगती है, मतलब डिमिनिश होने लगती है. जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर कमोडिटी कंज्यूम करता है, तो उस टाइम के लिए यूटिलिटी जो होती है वो क्या होने लगती है, डिमिनिश होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है. जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि व्हेन यू आर हंग्री, ओके, यू ईट 2 or 4 piece of chapatis, but after eating 4 chapatis, your utility goes on diminishing. Okay, so
जो आपका फर्स्ट रूल HS क्वेश्चन का था वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. ओके, सो आंसर विल बी ए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. Then there is a next question, who has given the concept of consumer सरप्लस. बेसिकली आपको जो कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी थी उसका कंसेप्ट किसने दिया था? AR ड्यूपिट. AR ड्यूपिट ने क्या किया था? आपके कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी दी थी, कंसेप्ट दिया था. ओके, सो आंसर विल बी ए. Then there's a ninth question, when the price of a commodity is high, okay, the demand will be less. This statement signifies the law. बेसिकली आपका क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस हाई होते हैं, ठीक है, तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे. ओके, सो दिस स्टेटमेंट्स signifies which law? This statement signifies the law of demand. Okay, law of demand states there is an inverse relationship between the price and demand. Okay, when prices goes up, the demand falls. Okay, and if prices falls, demands increases. There is an inverse relationship between price and demand. Okay, that is called as a law of demand. Okay, so answer will be A, law of demand. Then there is the next question, the क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड इफेक्टिव टू. बेसिकली आपकी जो भी क्वांटिटी डिमांड की जो क्वांटिटी होती है वो किससे बेसिकली इम्पैक्ट होती है? बेसिकली वो इम्पैक्ट होती है आपके प्राइसेस की वजह से. ओके, जैसे जैसे आपके प्राइसेस जैसे अगर आपके किसी कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके डिमांड पे पड़ेगा. ओके, क्योंकि प्राइस राइज होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, और अगर प्राइसेस कम होंगे किसी कमोडिटी के तो क्या होगा? आपकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. ओके, सो क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड जो होती है वो इफेक्टेड होती है डायरेक्टली बाय द प्राइसेस की वजह से. ओके, तो आंसर विल बी ए, प्राइसेस. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द डिमांड कर्व. बेसिकली आपका डिमांड कर्व का शेप क्या होता है? देखिए, आपका डिमांड कर्व का जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है. ओके, जैसे जैसे आपका ये एक है, ये आपका क्या है? ये आपका P है. ओके, ये आपके प्राइस है कमोडिटी की, एंड ये आपका क्या है? क्वांटिटी है. ओके, सो जैसे जैसे अगर प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जैसे देखिए, इस किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ओके, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी. ओके, सो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? फॉलिंग स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड की ओर. ओके, फॉलिंग होता है. ओके, सो आंसर विल बी ए, falling from left to right. Okay, so answer will be A. Then there is a next question, in case of a given good. Basically in the case of a given good के केस में क्या होता है कि जो भी आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन द इनकम इलास्टिसिटी से क्या होती है? ग्रेटर होती है. ओके, गिवन गुड्स में क्या होता है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है. ओके, सो आंसर विल बी बी, प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन द इनकम इलास्टिसिटी. Then there is a for given goods income effect will be. बेसिकली आपके जब गिवन गुड्स में क्या होता है कि जो भी इनकम क्या किसको इफेक्ट कर रही होती है? बेसिकली इनकम इफेक्ट होती है, उसका नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है. ओके, सो आंसर विल बी बी, नेगेटिव. देन देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ अ सोबन रिलेटेड टू. बेसिकली आपके जो आर्टिकल ऑफ अशोरमेंट रिलेटेड टू दी प्रेस्टिजियस, आपके जितने भी आपके प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं उससे रिलेटेड हो गए. ओके, सो आंसर विल बी बी, प्रेस्टिजियस गुड्स. देन देयर इज अ 15th क्वेश्चन, विच हैज़ मोर इलास्टिसिटी. बेसिकली किस में ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है? बेसिकली आपकी इलास्टिसिटी किस में होती है? लग्जरियस गुड्स में. लग्जरियस गुड्स में क्या होती है? आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, मोर होती है. ओके, सो आंसर विल बी बी. Then there is a 16th question, price elasticity represent. Basically आपको price elasticity क्या होता है? Price elasticity refers to the percentage change in the quantity demand upon percentage change in the prices. Okay, so answer will be A, percentage change in the quantity demand upon percentage change in the prices of the commodity. Okay, so answer will be A. Then there is a 17th question, value of the degree of a perfect elasticity.
इलास्टिसिटी विल बी, बेसिकली आपकी जो परफेक्टली इलास्टिसिटी की जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है, डिग्री ऑफ ए वैल्यू क्या होती है, बेसिकली वो इनफाइनाइट होती है. ओके, सो आंसर विल बी ए, इनफाइनाइट. ओके, then there is a 18th question. If the price elasticity of a demand is equals to 1, then the demand curve will be, basically आपका जब प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या है, आपकी 1 है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो डिमांड कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व की तरह दिखता है. ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल्स टू दी 1 के इक्वल होती है. ओके, so answer will be A, rectangular hyperbola. Okay, then there is a next question is a point method of measurement of elasticity. Basically इसमें पॉइंट मेथड, आप इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं पॉइंट मेथड के थ्रू. इसमें आपको क्या फॉर्मूला पुट करेंगे कि आपको पॉइंट मेथड ऑफ द इलास्टिसिटी पता चल जाए. इसमें फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट, जितना भी आपका लोअर सेगमेंट का जो भी होगा अपॉन अपर सेगमेंट. ओके, सो answer will be A, lower segment upon upper segment. Then there is the 20th question is a total outlay method. Basically total outlay method को हम लोग total expenditure method भी बोलते हैं. Total outlay method of measurement of the elasticity is propounded by, basically जो आपकी total outlay method of a measurement of a elasticity is propounded by, basically ये किसने इसको दिया था, it was given by the Marshall. Okay, total outlay method was measurement was given by the Marshall. Okay, so answer will be A, Marshall. Then there is a 21st question. Concept of synthetic economic is, basically synthetic economics is given by the Mori. Okay, so answer will be A, Mori. Then there is the next question is a cross elasticity of a substitute goods. Basically cross elasticity of a substitute goods में क्या होता है, basically substitute goods are those goods जैसे कि आपको एग्जांपल ले लीजिए टी एंड कॉफ़ी आर दी सब्सटीट्यूट गुड्स फॉर ईच वन. ओके, अगर आप एक कमोडिटी ना हो तो एक कमोडिटी के आप दूसरी कमोडिटी को प्रेफर कर सकते हैं. ओके, जैसे आपको टी ना हो तो आप कॉफ़ी प्रेफर कर सकते हैं. ओके, दैट आर कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा. ओके, सो आंसर विल बी ए, पॉजिटिव. Then there is the next question is a relationship between price and the quantity demand in the case of a complementary goods. Basically आपके जो complementary goods होते हैं तो for example आपका car and petrol. Okay, these are it is the example of a complementary goods. Okay, इसमें relation क्या होता है कि indirect relationship होता है, क्योंकि आपके अगर प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल अगर बढ़ते हैं, आपके अगर प्राइजेस ऑफ द पेट्रोल बढ़ रहे हैं तो जो भी आपकी कार की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाती है. ओके, फॉल्स डाउन, डाउनवर्ड की तरफ क्या हो जाती है, फॉल कर जाती है. ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी इन द केस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इनडायरेक्ट. Okay, then there is a next question is a real GDP is equal to, basically आपका real GDP किसकी इक्वल होता है, आपकी जो भी नॉमिनल GDP होता है उसमें से आप जितना भी इन्फ्लेशन होता है उसको माइनस कर देते हैं तो उससे आपको क्या पता चल जाता है, रियल GDP आपकी निकल के आ जाती है, कैलकुलेट हो जाती है. ओके, सो आंसर विल बी बी, नॉमिनल GDP माइनस नेशनल इन्फ्लेशन. ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइस इफेक्ट ऑफ नॉमिनल गुड्स इज इक्वल टू, बेसिकली जो भी आपको प्राइस इफेक्ट आता है ऑफ अ नॉमिनल गुड्स का इज इक्वल्स टू दी, किसके इक्वल होता है, वो आपके इनकम इफेक्ट के इक्वल होता है. जो भी आपका प्राइस इफेक्ट आता है नॉमिनल गुड्स का वो आपके इनकम इफेक्ट्स के इक्वल होता है. ओके, सो आंसर विल बी सी, इनकम इफेक्ट. देन देयर इज अ 26th क्वेश्चन इज प्रोडक्शन फंक्शन इज, बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन एक इकोनॉमिकल टर्म में भी होता है, एक टेक्निकल टर्म भी होता है. ओके, इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, जो भी आपका इनपुट और आउटपुट आता है प्रोडक्शन से. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, सो प्रोडक्शन फंक्शन इज बोथ, क्या है, बोथ है आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट में दिखाते हैं और टेक्निकल रिलेशनशिप भी इनपुट एंड आउटपुट में दिखाता है. ओके, सो आंसर विल बी सी.
Then there is a next question is a average AP, average product is maximum. Basically आपके जो average product होता है वो कब मैक्सिमम होता है? बेसिकली आपका एवरेज प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब आपके AP इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट, और आपके जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जब इक्वल होते हैं तब क्या होता है? जो आपका एवरेज प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम होता है. ओके, सो आंसर विल बी सी. Then there is the next question is exception of a law of major utility. Basically exception क्या है law of major utility का? Small unit is a exception of a major utility. कम unit होगी तो law of major utility क्या होगा? वर्क ही नहीं करेगा. ओके, सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज अ स्मॉल यूनिट. सेकेंड इज अ इंटॉक्सिकेटेड कमोडिटीज is exception, and third is a rate of a commodity. जो भी commodity का rate होगा वो भी क्या है? exception. okay, so answer will be D, all of these. Then there is a next question, 29th question. According to the utility concept, consumer equilibrium is. basically consumer equilibrium कहाँ पे होता है? basically consumer equilibrium वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका MU is a marginal यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, जहाँ पे आपकी इक्वल होती है किसकी? प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी के. जहाँ पे जब वो दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि आप क्या होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है. ओके, सो आंसर विल बी ए, MU इज इक्वल्स टू PX. ओके, then there is a next question, last question is कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू मॉडल कमोडिटी. बेसिकली ये आपका वन मॉडल कमोडिटी में ये आपका फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल्स टू P ऑफ अ कर्व P, प्राइस की इक्वल होता है. लेकिन अगर आपका टू मॉडल कमोडिटीज में दे रहे हैं तो उस केस में आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पे होता है? वो आपका होता है MU, आपका मार्जिनल आपका कमोडिटी होता है MU ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन आपके जो भी प्राइजेस होंगे आपके जो भी प्राइजेस ऑफ एक्स कमोडिटी के प्राइजेस जो भी होंगे वो इज इक्वल्स टू आपके इक्वल आ जाता है. किसकी इक्वल आ जाता है? ऑफ दूसरी जो भी आपकी कमोडिटी होगी MU ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन P के जो भी P प्राइजेस ऑफ द वाई कमोडिटी के इक्वल हो जाता है. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ अ टू कमोडिटी, मतलब टू कमोडिटी जो है वो आपकी एक X है और एक Y है. उस पहले X की जो भी मार्जिनल यूटिलिटी होगी अपॉन आप प्राइजेस से उसको अपॉन करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए? जो भी आपकी वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइजेस से जब आप डिवाइड करेंगे जो भी आपकी आएगी वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ द टू मॉडल में इज MU x अपॉन P इज इक्वल्स टू द MU y अपॉन y PY. ओके, सो आंसर विल बी B. Thank you guys, I hope you like the video. If you like the video, please click on the thumb button and please join our WhatsApp group. Links are given in the description box, and for PDF of this please go and visit our website. Thank you.